Okay, so the classification of amplifier. So first type of amplifier is voltage amplifier. You can see the Thevenin's equivalent circuit of voltage amplifier. Why Thevenin's equivalent? Because whenever we are drawing the equivalent circuit for voltage, we always consider Thevenin's equivalent, and for current source we always prefer Norton equivalent. आपने थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम दोनों ही पढ़ा होगा, तो वहाँ पे तुमको पता होगा कि जब वोल्टेज सोर्स में डील करते हैं देन वी आर गोइंग for Thevenin's equivalent, and when we are dealing with the current source then we will prefer the Norton. So in case of voltage amplifier, input and output both side we have voltage, so we are considering Thevenin's equivalent. Thevenin's equivalent means voltage source in series with RS. So Vs in series with RS, and Ri is the input impedance of your device, that is transistor. Similarly, transistor output side we have one more source, and its value of voltage is given as AV into VI, and it is nothing but VO. And here also this voltage source is in series with RO, and at the output side we have RL. Okay, now what is our requirement for any amplifier? हमारा जो इनपुट सोर्स से जितना भी वोल्टेज है, अगर हम एक एक साइड चेक करते हैं, पहले इनपुट साइड देन आउटपुट साइड. इनपुट साइड पे जो सोर्स Vs है, my requirement is complete voltage is available across Ri. मतलब Vs Vi के इक्वल होना चाहिए. और आउटपुट साइड के लिए मेरा रिक्वायरमेंट है कि AV इंटू Vi जो वोल्टेज सोर्स है, दैट कंप्लीट वोल्टेज इज़ अवेलेबल अक्रॉस RL. तो वोल्टेज पूरा का पूरा जो सोर्स है वो Ri के अक्रॉस आना चाहिए, और जो आउटपुट साइड पे वोल्टेज सोर्स है दैट इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल अक्रॉस द RL. तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में. सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है. तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर Ri एंड RO in order to achieve the performance of voltage amplifier? So our assumption, if Ri is very greater than Rs, means जो वोल्टेज डिवाइड होता है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा उसके अक्रॉस. तो इफ़ Ri is very greater than Rs, then Vi is approximately equal to Vs. मीन्स Vs का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Ri के अक्रॉस अवेलेबल होगा. सिमिलरली एट द आउटपुट साइड, अपने को RL के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो RL का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. सो आवर अजम्पशन इज़ RL इज़ very greater than RO. Then your VO is equivalent to that value of voltage source, that is AV into Vi. So that's this amplifier providing a voltage output proportional to the voltage input. So by this equivalent we can say that for an ideal voltage amplifier, input impedance should be as high as possible so that the maximum voltage Vs is available at Ri. That's why Ri is approximately equal to infinity. Similarly, at the output, if we want maximum voltage available across RL, that means your RO should be as small as possible. So RO ideally should be 0. Okay, so this is the reason why input impedance should be as high as possible and output impedance should be as low as possible for a voltage amplifier. And the relation between input and output, that is AV, is equal to VO by VI. Okay, so this is the explanation for voltage amplification. Now moving on to the current amplifier. अब जब हम करंट एम्पलीफायर की बात करेंगे तो हमारे पास जो इनपुट है वहाँ पे भी करंट होना चाहिए और आउटपुट है उस पर भी करंट होना चाहिए. अब करंट सोर्स के पैरेलल में RS आता है. सिमिलरली करंट सोर्स के पैरेलल में RO है आउटपुट साइड पे. वोल्टेज सोर्स में सीरीज़ में था. ओके, तो अब यहाँ पे भी हमारा मेन जो क्राइटेरिया है वो अभी भी वही है कि IS जो करंट है इनपुट का, दैट मैक्सिमम करंट शुड बी अवेलेबल इन RI. सिमिलरली एट द आउटपुट साइड जो करंट सोर्स है AI इंटू II, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मस्ट बी अवेलेबल इन RL. RO में नहीं होना चाहिए. सिमिलरली इनपुट साइड पे RS में नहीं होना चाहिए, RI में होना चाहिए. तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ. तो अगर मुझे RI में ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए
that means your RI value should be as low as possible. Similarly, आउटपुट साइड पे अगर मुझे RL में ज़्यादा करंट चाहिए, that means your RL value should be as low as possible. Okay, so what is our assumption? If Ri is very very less than Rs, then we can say Ii is equal to Is. And at the output side, if RL is very very less than RO, then AI into II is equivalent to IO. That is the output current. तो इससे अपने को क्या पता लगा कि आर आई और आर ओ जो एम्पलीफायर का होना चाहिए, आर आई शुड बी एज लो एज पॉसिबल, सो आइडियल वैल्यू इज़ ज़ीरो. एंड आउटपुट साइड पे आर ओ इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे आर एल का वैल्यू कम चाहिए. तो आर ओ शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, तो इसकी में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, जो भी करंट होगा वो आर एल के थ्रू जाएगा. इसके लिए तो करंट एम्पलीफायर के लिए क्या हुआ कंडीशन, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस का. फॉर आइडियल करंट एम्पलीफायर आर आई शुड बी ज़ीरो एंड आर ओ शुड बी इन्फिनिटी. अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा जो एक टेबल था, आप वहाँ से वेरीफाई करते जाओ. वहाँ पे वोल्टेज के लिए क्या कंडीशन था और करंट के लिए क्या कंडीशन, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गए. और आउटपुट और इनपुट गेन की अगर बात करेंगे तो आउटपुट करंट इज़ आई एल और इनपुट करंट इज़ आई आई और आई एस, अगर हम फीडबैक की बात करते हैं तो. ओके, इन केस ऑफ वोल्टेज वी आर कंसिडरिंग दैट ओपन सर्किट, and in case of current it is short circuit current amplification. Okay, so moving on to the next amplifier, that is a trans conductance amplifier. Conductance अपने को पता है क्या होता है, it is opposite of resistance. Resistance is V upon I, तो conductance क्या होगा, I upon V. means output पे होगा current और input पे होगा voltage. ओके, तो अब यहाँ पे हम सर्किट बनाएंगे मिक्स वाला. आउटपुट साइड पे करंट है तो आउटपुट साइड पे करंट सोर्स आएगा एंड इट इज़ इन पैरेलल विद आर ओ एंड पैरेलल विद आर एल. इनपुट पे वोल्टेज सोर्स है तो वी एस रहेगा, इट इज़ इन सीरीज़ विद आर एस और उसके सीरीज़ में आएगा आर आई. तो ये कैसा है, अभी ऊपर के जो एम्पलीफायर थे उसका हाफ ऑफ सर्किट लिया है, हाफ आउटपुट पे हाफ इनपुट पे. अभी कंडीशन सेम वैसे ही है. वोल्टेज मैक्सिमम मुझे चाहिए आर आई के अक्रॉस. अगर मैक्सिमम वोल्टेज आर आई के अक्रॉस चाहिए तो आर आई का वैल्यू ज़्यादा चाहिए. सिमिलरली द करंट जी एम इंटू वी आई, अगर ये वैल्यू मुझे आर एल के अक्रॉस चाहिए तो आर ओ का वैल्यू ज़्यादा चाहिए. ओके, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ आर आई is greater than RS, then maximum VS is available at RI. That means we can say VI is equal to VS. Similarly, at the output, if we want maximum current is available in RL, RL का वैल्यू कम होना चाहिए, that means RO should be as high as possible. तो यहाँ के लिए आइडियल हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है, that ideal characteristics are RI should be infinity and RO should be infinity. Both Ri and Ro, both the values must be as high as possible, ideally infinity. और यहाँ पे GM हम क्यों यूज़ कर रहे हैं गेन की जगह पे, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर. तो ट्रांस कंडक्टेंस डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर. ट्रांस रेजिस्टेंस में आउटपुट पर रहेगा वोल्टेज VO एंड इट इज़ इन प्रोपोर्शन विद द इनपुट सिग्नल. इनपुट साइड पे रहेगा करंट IS. ओके, तो करंट की बात करेंगे तो इनपुट साइड का जो इक्विवेलेंट होगा वो नॉर्टन रहेगा और आउटपुट साइड का जो इक्विवेलेंट होगा सिंस इट इज़ वोल्टेज तो वो रहेगा थेवेनिन्स. तो आउटपुट पे वोल्टेज सोर्स है तो इट इज़ इन सीरीज़ विद RO एंड इन सीरीज़ विद RL. Similarly, input side we have Norton equivalent of current source, that means IS in parallel with RS and parallel with RI. Now again the same, input side पे current है, we want IS is available in RI, maximum current is flowing through RI. अब RI के अक्रॉस मैक्सिमम करंट चाहिए, दैट मीन्स RI का वैल्यू RS से कम होना चाहिए. सिमिलरली वोल्टेज की बात करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए RL में, तो वोल्टेज के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, करंट के केस में रेजिस्टेंस कम चाहिए. तो RL का वैल्यू ज़्यादा चाहिए मतलब RO कम चाहिए. सो वी कैन से दैट एम्पलीफायर मस्ट हैव RI should be 0 and RO
should be 0. So these are 4 amplifiers that are available to us. ट्रांस रेजिस्टेंस इज द फोर्थ वन. तो टोटल अपने पास कितने एम्पलीफायर हो गए? वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस. वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट आउटपुट दोनों साइड पे वोल्टेज रहता है. दैट्स वाई इनपुट शुड बी हाई एंड आउटपुट शुड बी लो. करंट में दोनों साइड करंट होता है. दैट्स वाई आर आई शुड बी लो एंड आर ओ शुड बी हाई. ट्रांस कंडक्टेंस में बोथ आर आई एंड आर ओ शुड बी इन्फिनिटी एंड ट्रांस रेजिस्टेंस में बोथ आर आई एंड आर ओ शुड बी 0. बाकी जो रिलेशन है वो आप डायग्राम से देख सकते हो. आउटपुट पे क्या है? वी ओ. इनपुट पे क्या है? आई एस. गेन इज गिवन बाय आर एम. सो आर एम इज इक्वल टू वी ओ बाय आई एस. सो वी ओ इज इक्वल टू आर एम इंटू आई आई. किसी भी एम्पलीफायर में ये रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड the classification and the equivalent of all 4 amplifiers. Next, we will proceed towards the block diagram and the concept of feedback, how the feedback is carried out. Thank you.